Good morning. Today's topic is protein synthesis. Myself, Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. Dear students, this is a very important topic, protein synthesis. So today I am going to explain you the basic concepts of protein synthesis and how the protein synthesis it is occurring. So how do we define synthesis? Synthesis means the process of building or making. When we define it as protein synthesis, that means the process of building or making of proteins. Proteins का बनना it is called as protein synthesis. अब generally if we are speaking of protein synthesis, then two things are involved. One is the DNA and another is RNA. The question is asked, what is the difference between DNA and RNA? So DNA, it is a deoxyribonucleic acid, the genetic code or instruction for the cell. And RNA, it is ribonucleic acid. Now what are the other requirements for protein synthesis? The other requirements are that we require building blocks of proteins, that is amino acid. So how do we define amino acid? They are the building blocks of proteins. Difference between DNA and RNA. DNA deoxyribonucleic acid है, RNA ribonucleic acid है. शुगर DNA में deoxyribose, RNA में ribose sugars. That means they contain one more hydrogen atom than deoxyribose. इस शुगर में एक हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होगा. DNA it is double stranded, RNA it is a single strand of nucleotide RNA. अब if we see the nitrogen bases, then the nitrogen bases जो DNA में हैं that is adenine, thymine, cytosine and guanine. And if we say in RNA, then this uracil is present and thymine is not there. Now here you can see diagrammatically the difference between DNA and RNA molecule. ये molecule में आप देख रहे हैं it is मतलब देखिए डबल स्ट्रैंडेड है. RNA molecule है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है. तो यू कैन सी द वेरी वेल मार्क डिमार्केशन कि जो डबल स्ट्रैंड है ये क्या कॉइल्ड है, इसके कॉइल से खुलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर. द फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? मेकिंग RNA का बनाना दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. अगर हम इसकी लोकेशंस देखें दैन इन यूकैरियोट्स इट इज अकरिंग इन न्यूक्लियस और प्रोकैरियोट्स में कहाँ? साइटोप्लाज्म में. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एक RNA पॉलीमरेज होती है एंजाइम, इट बाइंड्स टू द जीन प्रमोटर. तो पहला स्टेप है जब हम बना रहे हैं RNA इन ट्रांसक्रिप्शन, तो फर्स्ट स्टेप इज RNA जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये बाइंड करती है जीन्स प्रमोटर को. सेकेंड क्या है कि द टू DNA स्ट्रैंड्स दे अनवाइंड एंड सेपरेट. जो दो DNA स्ट्रैंड्स हैं खुल जाएंगे और अलग हो जाते हैं, सेपरेट. थर्ड स्टेप कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड यूजिंग द बेस पेयरिंग रूल. अब बेस पेयरिंग जो रूल है वो उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं और बाकी सेम है दैट साइटोसिन विद ग्वानिन, थाइमिन विद एडेसिन एंड अगर RNA का होगा तो यूरैसिल आ जाएगा. तो दिस इज द बेस पेयरिंग. तो फर्स्ट स्टेप. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैसेंजर RNA? RNA भी हम देखते हैं तीन तरह के होंगे, mRNA, tRNA एंड rRNA. तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड, डिस्क्राइब द थ्री टाइप ऑफ RNA. तो मैसेंजर RNA नेम इंडिकेट करता है मैसेज को लेके जाना. सो व्हाट इज मैसेंजर RNA डूइंग? It means it is a form of RNA that carries the instruction for making the protein from a gene and deliver it to the site of the translation. तो mRNA का फंक्शन क्या है कि मैसेज को लेके जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि जहाँ प्रोटीन बननी है उस जीन को एंड वह प्रोटीन्स आर मेड. तो मैसेंजर RNA नेम इंडिकेट इट इज कैरिंग द मैसेज. Now define codon. ये भी पूछते हैं व्हाट आर कोडोन? दे आर 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो होते हैं कोडोन पर होते हैं. ट्रांसफर RNA, tRNA इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA, एक सिंगल स्ट्रैंड RNA that carries a specific amino acid on one end
एंड हैज़ एन एंटीकोडोन। तो इसका टीआरएनए का क्या है कि एक साइड पे तो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कैरी कर रहा है और एक साइड में इसके एंटीकोडोन होता है। तो एंटीकोडोन कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन टीआरएनए। Anticodon, what is anticodon? A 3 nucleotide sequence that is complementary to an mRNA codon। कि मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स हैं और ये किससे कॉम्प्लीमेंट करेंगे? मैसेंजर आरएनए के कोडोन से। मैसेंजर आरएनए में कोडोन है, एंटीकोडोन कहाँ है? टीआरएनए पे। Now ribosomal RNA, it is a part of the structure of ribosome। In the next diagram you can see how the protein synthesis it is taking place in the nucleus। इसमें देखा आपने कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके स्ट्रैंड्स खुल रहे हैं, मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके जा रहा है विद द कोडोन टू द ट्रांसफर आरएनए जहाँ पे एंटीकोडोन है। सीक्वेंस से अमीनो एसिड्स का कैसे लगेगा और फाइनली राइबोसोमल आरएनए इट इज़ हेल्पिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो डायग्रामेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपली समझाया गया है हाउ द प्रोटीन सिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडोन एंड एंटीकोडोन? एक फॉर्म में आता है। तो कोडोन एज आई टोल्ड यू एमआरएनए पे मिलता है and anticodon it is found on tRNA and here you can see the diagrammatic representation। देखो एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये 3 कोडोन है और यहाँ पे एंटीकोडोन है वो tRNA पे है एंड हियर यू कैन सी वेरी वेल कैसे अमीनो एसिड्स हैं और अमीनो एसिड्स हैं ये क्या कर रही है? अमीनो एसिड्स tRNA के थ्रू जा रही है। यहाँ पे इंट्रास्ट्रैंड्स बन रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है एंटीकोडोन से हुआ, एंटीकोडोन पेयर करेगा विद एमआरएनए और एमआरएनए फिर लीव कर देगा, नया आ जाएगा अमीनो एसिड और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो रिमेंबर कोडोन इट इज़ फाउंड ऑन एमआरएनए एंड एंटीकोडोन इट इज़ फाउंड ऑन टीआरएनए। दूसरा स्टेप्स अगर हम देखेंगे तो दैट इज़ ट्रांसलेशन, दैट इज असेंबलिंग प्रोटीन्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स इकट्ठी हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। अब इसमें क्या व्हाट हैपेंस? एमआरएनए लीव्स न्यूक्लियस और एंटर करेगा साइटोप्लाज्म को। टीआरएनए मॉलिक्यूल क्या करेगा? अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से मैंने बताया एंटीकोडोन होते हैं वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड के पास जाएंगे एट द राइबोसोम्स वेयर द एमआरएनए इज वेटिंग। एमआरएनए जहाँ उनका इंतजार कर रहा है तो टीआरएनए मॉलिक्यूल जाएगा अपनी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेकर। पेप्टाइड बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स। टीआरएनए मॉलिक्यूल अब लीव कर देगा एंड न्यू वन विल कम विद अनदर अमीनो एसिड और दूसरी नए अमीनो एसिड के साथ आएगा। तो अमीनो एसिड दे कंटिन्यू टू अटैच टुगेदर अंटिल द स्टॉप कोडोन एंड अ प्रोटीन इज फॉर्म। तो अमीनो एसिड अटैच होती जाएंगी जब तक कि कोडोन स्टॉप कोडोन नहीं आए एंड प्रोटीन इज फॉर्म। तो दिस इज द बेसिक स्टेप। सो 2 स्टेप्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन। समराइजिंग इट, ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? आरएनए का बनना, किससे? फ्रॉम डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मिंग process of making RNA from DNA. Translation, RNA directions are used to make a protein from amino acids. प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड से, दैट इज ट्रांसलेशन। सो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, and this transcription it is occurring in nucleus and translation cytoplasm on ribosome. So this is the whole summary, very simply I have explained you, and in elaborately I am going to explain you in my another lecture. तो इसमें I have explained you what are codons, what are anticodons, mRNA, tRNA, ribosomal RNA, what is transcription and what is translation, what is the difference between DNA and RNA. So this is the basic backbone we can say of protein synthesis. Hope you have understood, and in my next lecture I am going to explain you the whole process in elaborate form. Till then, goodbye, thank you, take care and stay safe.